Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today is the day in which we are going to revise the concept. ठीक है, तो हमने जो light, shadows and reflection के बारे में study किया है, we are going to revise all of the matter we have studied in this chapter. So this is the revision chapter और ये बहुत अच्छा मौका है जिससे आप अपने जो notes आपने prepare किए हैं उन्हें और भी proper कर सकते हो, right? तो हम क्या करेंगे, आप अपनी कॉपीज़ निकालोगे, आप लोग रिवाइज करोगे अपने कॉपीज़ से, राइट? एंड जो भी चीज़ें छूट गई हो यू कैन मेक दोज फिलअप्स, राइट? एंड ऑफ कोर्स इससे आपके नोट्स भी प्रॉपर हो जाएंगे, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा. सो आपको अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए भी तो तुम्हें नॉलेज चाहिए, राइट? तो ये चैप्टर हम अगेन रिवीजन कर रहे हैं, फिर तुम एक बार घर पे और वापस से रिवीजन करोगे तब जाके तुम नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट गुड थिंग. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, यू ऑल नो दैट वी डील विद द ओलंपियाड्स, ऑलराइट, एंड द स्कूल एग्जामिनेशन. सो बेसिकली ऑल द ओलंपियाड्स इन द साइंस एंड मैथमेटिकल मेन कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये जो है मेन है हमारे लिए. So we are making you prepare for the science and mathematics olympiads, that is 6th, 7th, 8th olympiads, NTSC, NSCJS, PRM along with your school examination. So that is what we do here. We do prepare you for such type of examinations, either they are the school one or the olympiads one. Okay, and if you want any DPP or study material, you can access them through our telegram channel. What do you need to do? सबको पता है ना क्या करना होता है तुम्हें? TTP06 को लिखना होता है. कहाँ लिखना होता है? टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में. ठीक है, तो व्हेन यू राइट द TTP06 ओवर देयर, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आती है उसके अंदर आपको हमारा चैनल अपेयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस. ऑलराइट, नाउ सी, ये जो टीम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, दिस इज द टीम विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड दिस टीम इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन, स्पेशली द साइंस एंड द मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स basically, right? So we are making you preparing for these examinations and we are very much doing hard work for you all so that you are able to crack the examinations, right? You just need to watch these video lectures, you need to study from these video lectures, try out all the questions. You can definitely work out the quiz also. Quiz is free for everyone, right? So basically the lectures are free for everyone, anybody can see them. Along with the quizzes, you can attempt the quizzes. So make sure you do that, attempt those quizzes, and you can definitely watch these video lectures, study from these video lectures, and you are able to crack the examination. Alright, and the thing is that you should stick with us, right? आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 लेक्चर देख लिया एंड तीसरा नहीं देखा है because you are not that much of your study का मूड नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं करना है. You need to study all the lectures, all the chapters, alright? और फिर सभी के क्विज अटैम्प्ट करने हैं ये पता करने के लिए कि तुमने ध्यान से समझा है कि नहीं समझा है. ठीक है, इफ़ यू डू दैट देन आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, बोथ द एग्जामिनेशंस. दैट विल बी सो मच कूल, राइट? And make sure that you share these video lectures to every one of your friends and relatives and the known people so that they also get benefit from these video lectures along with the quizzes. So basically get these to everyone so that everyone can be benefit from them. Alright, और सभी के गोल्स पूरे हों ये तो बहुत अच्छी बात होती है ना. Alright, so अब मैं आपको बताती हूँ कि in accordance to that, क्योंकि ये video lectures are free for everyone, right? Anybody can watch them, attempt the quizzes, but along with that we have also prepared some packages including the whole year throughout, you can say, strategy and planning how you can do that, right? For that you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. if you go on that website you will be getting 2 type of packages. Number 1 is the full package. You will be getting the comprehensive study material, alright, recorded and live classes, that is of course free and you are also getting it. Homework submission feature is important also, where you will be doing the homework and submitting to us, and then you will be getting the bi-weekly quizzes along with the periodic test papers. So ये जो periodic test papers होते हैं ये actually में सबसे important होते हैं. Periodic test papers will let you know what is the you can say pattern of the examination. That would be so cool if you already know the pattern and you are familiar with the pattern. So basically try out the periodic test papers also, right? So that would be so good because this is the year-long concept. ठीक है, तो आपको throughout the year you have to prepare from these things. You are going like step by step, one chapter at a time, and you are going to study for the whole year. That would be a strategy
for preparing for the competitions, right? And if you're not interested in preparing, you can definitely go for the test series, right? You can get the test series, and test series includes the periodic test papers, recorded in live classes along with the bi-weekly quizzes, so you can go for that. And if you are really serious about buying them, if you want to buy them, you can remember my code CYLive so that you can get a 30% discount on the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you have any query regarding these, because maybe you are not very much sure that how these are going to help you, right? So if you have any query, you can call us on the number 919549041111. If you call us on this number, you will be getting all your queries resolved. That would be the most important thing, so that you know about how these are going to benefit you, or even they are helpful or not helpful for you, you can decide that. All right, so that would be cool. Give us a call, that would be a nice thing to do so. राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं. सो हम बिल्कुल लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू लाइट हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था, राइट? तो देखो, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे. सो बेसिकली प्रॉमिस योरसेल्फ that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. आज की रिवीजन क्लास तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपको डेली रिवीजन करना है 15 minutes a day minimum. That is the minimum thing. ठीक है, 15 minutes तो मिनिमम करना ही है रिवीजन. अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, you can go for it, right? लेकिन मिनिमम आपको 15 minutes तो करना ही है. That would be a step that can be taken by you so that you can become a smart student. All right? Now let's get started. हमारा जो मेन एम है आज का. सो बेसिकली जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग किया था लाइट का, तो हमने क्या बोला था कि जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, ताकि हमें पता चल सके कि भाई लाइट क्या है और हमें मतलब क्या हेल्प कर रही है लाइट, और हमें हमेशा क्यों चाहिए होती है लाइट. ये सब जो चीज़ें हम लोगों ने लाइट के बारे में जानी, उनका स्टार्टिंग हमने कुछ क्वेश्चंस के किया था. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, राइट? जैसे कि कौन सी सेंस हमें देखने में हेल्प करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं. तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट द सेंस इज द सेंस ऑफ विजन और द सेंस ऑफ साइट, राइट? तो ये जो सेंस है, दैट इज वन ऑफ द 5 सेंसेस वी हैव ऑल गॉट, राइट? सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा था, कैन वी सी लाइट, क्या हम लाइट को देख सकते हैं? एंड वी डेफिनेटली आंसर्ड इट लाइक नो, वी कैन नॉट सी लाइट, हम लाइट नहीं देख सकते हैं. सो बेसिकली दैट इज़ द मोस्ट, यू कैन से, एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, मतलब समझ में नहीं आता. अब तक तो नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, अभी तक किसी ने ऐसे सोचा ही नहीं होगा, और अगर किसी ने सोचा भी होगा तो उसे कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला होगा, राइट? तो अभी तक हम लोग यही नहीं सोचते कि लाइट दिखती भी है कि नहीं दिखती, हमें तो नहीं पता. वी हैव हैवंट इवन थॉट अबाउट दैट, बट एक्चुअली में व्हेन वी डू थॉट अबाउट इट, व्हेन वी ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड अस, तब हमें पता चलेगा कि व्हेन वी कैन नॉट सी द लाइट, राइट? हम लोग लाइट नहीं देख सकते. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज, कैन वी सी थिंग्स? ऑब्वियसली हम आसपास जो चीज़ें देख रहे होते हैं, ऑब्वियसली ये तो सबसे नॉर्मल एंड बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कोई भी इसका करेक्ट आंसर दे दे. वी कैन सी लाइट्स, राइट? things, right? Not the light, things, we can see them. Next हमने देखा था, can we see things in the dark, and we answered it as a no because it is so real, right? हाँ, like हम लोगों के पास ऐसी powers नहीं है, but some animals do have the power कि वो अंधेरे में भी देख सकते हैं, but we humans do not have that power. So basically हम लोग तो डार्क में नहीं देख सकते. If there is so dark around us कि भाई कुछ भी नहीं, आपको इतनी सी भी लाइट नहीं मिल रही है, देन वी आर नॉट एबल टू मेक आउट दी पाथ और द थिंग्स अराउंड अस, वी आर नॉट एबल टू इवन गेस, राइट? तो दैट इज द सो गुड थिंग कि हम लोग डार्क में तो नहीं देख सकते, वी नीड लाइट, राइट? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, कैन वी सी थिंग्स इफ देयर इज लाइट बट नो सेंस ऑफ साइट. अगर हमारे पास कोई यू कैन से सेंस नहीं है साइट की, ठीक है, देखने की हमारे पास सेंस नहीं है, और लाइट अवेलेबल है, कैन वी सी इट? तो ऑब्वियसली इट्स नो, अ बिग नो, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर नीडेड ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट अगर हमें चीज़ों को इल्यूमिनेट कर रही है, लाइट अगर चीज़ों को विजिबल बना रही है, तो वो विजिबली जो लाइट हमारे आंखों में जाएगी, दैट शुड बी सेंस्ड बाय द ब्रेन, राइट? अगर वो सेंस ही नहीं होगी, देन वी आर नॉट एबल टू मेक आउट, राइट? तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे. इवन लाइट अराउंड अस होगा तभी भी हम नहीं पता कर पाएंगे, कि हम देख नहीं पाएंगे, हम चीज़ों को पता नहीं कर पाएंगे, राइट? तो दैट इज़ द गुड थिंग कि हमें 2 चीज़ें चाहिए चीज़ों को देखने के लिए, राइट? आसपास सराउंडिंग्स को देखने के लिए. द वन इज द सेंस ऑफ साइट एंड द अदर वन इज द लाइट, द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट?
इसके बेसिस पे हमने क्या किया था, लाइट का डेफिनेशन बनाया था. सो व्हाट इज दैट, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन. तो बेसिकली लाइट जो है ये एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट जो है ये एक एनर्जी है बट इट इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी द लाइट बट वी कैन सी थिंग. दैट मीन्स इट इज गिविंग अस द सेंसेशन ऑफ विजन, राइट. बिकॉज ऑफ दैट लाइट वी आर एबल टू सी थिंग्स, राइट. ये जो लाइट है खुद इनविजिबल होती है बट बाकी सभी को क्या कर देती है, विजिबल बना देती है. ऑलराइट, now let's move on. We talked about the sources of light. Sources of light means ऐसी objects जो कि हमें light देती हैं. alright, मतलब ऐसी objects from which we are getting light and the light is entering into our eyes. So basically that can be taken as the source of light. ठीक है, अब जैसे sun हुआ, moon हुआ, candle, fireflies, right? तो ये सभी चीज़ें जो हैं these are giving us the light. So they can be taken as the source of light. ठीक है, अब एग्जाम्पल, इसका कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बेसिस पे, और यू कैन से ऑल द थिंग्स अराउंड अस, वी कैन डिवाइड ऑल द थिंग्स विच in the two categories, and the one is the natural sources of light, the other one is the artificial or man-made sources of light. So basically natural sources of light वो sources होते हैं जो nature के through हमें provide होते हैं, just like sun, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, सोर्सेज, सॉरी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, दैट मीन्स ऐसी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट दे रही है, हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है, बट वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर ओनली. ठीक है, क्योंकि सन को हमने नहीं बनाया, वी डू, ह्यूमंस डू नॉट क्रिएटेड सन, राइट. स्टार्स हमने नहीं बनाए हैं, मून हमने नहीं बनाया है. So basically all the things which are actually giving us light and they are provided to us by the nature, they are termed as the natural sources of light. Among them, one is the sun, the most vital and you can say the most ultimate source of energy, we can say that. सारी एनर्जी इवन अर्थ के ऊपर लिविंग बीइंग, मतलब पूरा यू कैन से इकोसिस्टम चलाने के लिए, द प्लांट्स, द ऑल द थिंग्स नीडेड टू सर्वाइव, वो सभी का सभी एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द लाइट ओनली. एंड वी ऑल नो, राइट, कि फोटोसिंथेसिस होता है, राइट. सो वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो. सो बेसिकली वी ह्यूमंस आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दैट सनलाइट ओनली, राइट. तो दिस इज द मोस्ट अल्टीमेट एंड मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. Alright, so this sun should be like worship because it is giving us so much energy, so we can do our work more efficiently, right. तो देखो, the most vital and the brightest source of light, natural light for the entire world is the sun, for the entire world, right. It provides ample light and warmth for us on the earth. The sun is also the medium which leads us to the evolution of life. So basically ये हमें लाइट भी देता है, वार्मथ भी देता है, राइट. सो वी सर्वाइव हियर, राइट. ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी और प्लैनेट्स भी तो हैं, मार्स, वीनस, ये भी तो हैं, बट इनके ऊपर तो लाइफ नहीं है, राइट. तो वैसे हम खोज भी रहे हैं, वी आर गेटिंग मच, यू नो, रिसर्चिंग अबाउट दैट, बट स्टिल अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, राइट. तो सोचो, अर्थ के ऊपर जो सनलाइट आ रही है, सिर्फ उसी सनलाइट की वजह से वी आर एबल टू सर्वाइव, वी आर एबल टू इवॉल्व एंड वी आर व्हाट वी आर टुडे. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एनर्जी हमें मिली है और जिस एनर्जी से पूरा का पूरा वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, दैट एनर्जी इज coming from the sun. So basically this sun is the most important thing in the world, right. Without it I don't think so कि we survive, right. Next thing जो हमने पढ़ा था, moon. Well, ये जो moon होता है इसकी खुद की लाइट नहीं होती, but still खुद की लाइट नहीं होती फिर भी हमें लाइट प्रोवाइड करता है. क्या करता है ये सन की जो लाइट रेज उसके ऊपर फॉल होती है, मून के ऊपर फॉल होती है, उसको वो क्या करता है, हम तक रिफ्लेक्ट कर देता है. बट इन दैट प्रोसेस जो लाइट है उसके अंदर से सारी वार्मथ चली जाती है. सो बेसिकली द लाइट कमिंग फ्रॉम द मून इज सो प्लीजेंट एंड कूल टू अस, राइट. वी फील वेरी मच प्लेजरेबल, इट्स गुड, राइट. सो दैट इज द थिंग कि ये जो मून है जिससे लाइट हम तक आ रही है, that light is not having any warmth in it. So basically we find it very pleasant and cool to our eyes, and basically it is providing the light in the night also, right. तो देखो, it has no light of its own, खुद की लाइट नहीं होती है, but is instrumental in reflecting the light of the sun, which spreads a cool and pleasant light at night, which again helps us to see around us. So basically
मून का स्ट्रक्चर, मून का मटीरियल ही कुछ ऐसा होता है कि वो क्या करता है, सन से आती हुई लाइट को अर्थ तक भेज देता है, और इन दैट प्रोसेस वो बहुत ही कूल हो जाती है एंड इट इज सो प्लीजेंट टू गेट दैट लाइट. सो वी ऑल लव द नाइट लाइट ऑफ द मून, राइट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमने ऑलरेडी देखा था, द स्टार्स. बेसिकली स्टार्स से इतनी ज़्यादा लाइट हमको नहीं मिलती है बिकॉज वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है. तो मतलब हमें बहुत 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 ज़्यादा तो लाइट नहीं मिलती जैसे कि सन से मिलती, उतनी तो बिल्कुल नहीं मिलती, बट स्टिल वी गेट दैट, ठीक है. सम स्टार्स शाइन ब्राइटर देन द सन एंड आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, बट बीइंग वेरी फार अवे आर नॉट विजिबल टू अस. बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं, सन से भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड द अर्थ we are getting very much less light as comparing to the sun. Alright, and जो दूसरे होते हैं, जो छोटे छोटे stars होते हैं, they are just like twinkling stars जो हैं हमको visible होते हैं. So basically they are not providing us that much of light, but still they emit light of their own, right? So they can be taken as the natural source. Alright, देखो source का मतलब ये नहीं है कि हमको एनर्जी मिल रही है या फिर हमको लाइट एनर्जी मिल रही है कि नहीं. सोर्स का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट एमिट कर रही है, भले ही वो कितनी भी एमिट कर रही हो, वो स्मॉल अमाउंट में लाइट एमिट कर रही है, लार्ज अमाउंट में लाइट एमिट कर रही है, ठीक है. अगर ऐसा भी पॉसिबल होता है तो भी हम उसे सोर्स की कैटेगरी में ज़रूर रखेंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए कि हमको यूज़ करना है उस लाइट को, नॉट लाइक दैट, ठीक है. सो बेस्ड ऑन द कैपेसिटी कि भाई वो एमिट कर सकती है लाइट को, नहीं, सिर्फ उसी के कैपेसिटी के बेसिस पे हमने इसे सोर्स माना है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो हम तक यूजेबल फॉर्म में भी पहुंचे. ऑलराइट, इसी तरीके से फायर फ्लाइज जो होते हैं, जिसे हम जुगनू कहते हैं, वो भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में खुद से लाइट बन रही होती है, राइट. हालांकि वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम उसे यूज़ कर सकें, बट स्टिल दे आर एमिटिंग लाइट, दैट्स व्हाई दे कैन बी टेकन एज द सोर्स ऑफ लाइट. ऑलराइट, अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. नाउ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर द लाइट सोर्सेज व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन, राइट. सो व्हाट वी क्रिएटेड, that are known as the artificial sources of light. Basically the lamp, the candle, the light bulb, alright, tube lights, CFLs, and all the other things which are generating light but are made by humans can be taken as the artificial source of light. Alright, अब देखो हम आगे चलते हैं. We are talking about the nature of objects. So there are two types of objects, the one which emit light and the one which do not emit light of their own, right? So we have categorize them into two types, luminous and non-luminous objects. So basically see, luminous objects जो होती हैं, those objects which do have emit light of their own, that means वो खुद की light emit करते हैं, they have light, they construct light, they form light and they emit it. जिसमें से sun सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. यू कैन टेकन दैट लाइटनिंग ऑल्सो, ठीक है. तो लाइटनिंग एक तरीके से इतना ज़्यादा अमाउंट में तुमको लाइट नहीं देता है, बट स्टिल लाइटनिंग एक ऐसा यू कैन से सोर्स है जहाँ पे लाइटनिंग तो खुद का तो एमिट कर रहे हैं ना, मतलब खुद से तो लाइट एमिट हो रही है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो, इट कैन बी टेकन एज द लुमिनस ऑब्जेक्ट, राइट. सो सन, लाइटनिंग, स्टार्स, राइट. तो ये सब क्या होंगे, नेचुरल लुमिनस लाइट, बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर एंड ऑल्सो दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. दैट्स व्हाई दे आर द नेचुरल लुमिनस सोर्सेज. वहीं पर ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट तो देती है बट ह्यूमंस ने बनाई है, सो दे कैन बी टेकन एज द आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि यू कैन सी द लैम्प, द बल्ब, दीज कैन बी टेकन एज द आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो मतलब लाइट तो आ रही है, एमिट तो कर रहे हैं, बट दे आर मेड बाय ह्यूमंस. ऑलराइट, इसी तरीके से यू कैन सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट एमिट नहीं करती हैं, ऑलराइट. और ये नेचुरल जो चीज़ें होती है वो कौन होती है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मून. सो बेसिकली मून क्या करता है, सन की लाइट को लेके रिफ्लेक्ट कर देता है, तो खुद की तो लाइट नहीं है मून की. दैट मीन्स मून इज द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, बट इट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज नेचुरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है. वहीं पर मून के साथ साथ प्लैनेट्स भी होते हैं जो कि नेचुरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. मीन्स यू कैन से दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन, बट दे डू रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है. तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब जो उनके ऊपर लाइट फॉल होती है वो उसको दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं, राइट. तो ये जो है वो आर्टिफिशियल नॉन, यू कैन से द नेचुरल नॉन लुमिनस. आर्टिफिशियल तो अभी बताती हूँ मैं आपको. आर्टिफिशियल जो है नॉन लुमिनस, जो कि खुद की लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्ट करते हैं एंड दे आर मेड बाय ह्यूमंस. जैसे कि टेबल, चेयर, आपके रूम में प्रेजेंट हर कोई चीज़, ठीक है. इट कैन बी अलमीरा, इट कैन बी बेड, टेबल, बुक्स,
ठीक है, पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, इवन विंडोज, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, इनके ऊपर फॉल होने वाली लाइट को तुम्हारी आंखों तक पहुंचा देती हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, द ह्यूमन मेड चीज़ें, एंड दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन, आर टर्म्ड एज द आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मीडियम ऑफ लाइट। सो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट जा पाती है, नहीं जा पाती है, वी कंसीडर दैट एज द मीडियम, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट जाती है या फिर लाइट जाने की कोशिश करती है, दैट कैन बी टेकन एज द मीडियम ऑफ द लाइट, ऑलराइट। तो मीडियम है तीन तरीके के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशन, ऑपिक, ऑलराइट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशन, ऑपिक, ये हमें मीडियम्स मिले हैं। पहला जो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट फुली कैन एंटर थ्रू दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में से फुली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लास एंड द वाटर इनसाइड इट, तो बोथ आर दी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, लाइट कैन गो थ्रू विद देम, go through them actually, not with them, so light can go through with them, right। तो you can say कि भाई यहाँ पर you can see the fish, right, तो that means आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हो, राइट। जैसे कि ग्लास हुआ, विंडो का विंडो पेन जो होता है वो ग्लास का बना होता है ना बीच में, राइट, तो उसमें से आप बाहर का देख पाते हो, दैट मीन्स दैट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ऑलराइट। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें से आप देख पाओ आर पार, ठीक है, आप उस पता कर पाओ कि इसके पीछे क्या है, अगर आप ऐसे देख पा रहे हो, दैट मीन्स you should know that that object is the transparent one and that comes into the category of the transparent objects, ठीक है। उसके अलावा देखो ट्रांसलूशेंट, ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से पार्शियल लाइट जा सकती है, ऑलराइट, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर, ऑलराइट, ग्रीस्ड पेपर, पैराफिन वैक्स, ये सब जो भी हैं ये सब के सब एक्चुअली में क्या है, ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली लाइट कैन गो थ्रू दैम बट एक्चुअली अ लिटिल बिट ऑफ पार्शियल लाइट कैन गो थ्रू, राइट। तो इसका मतलब यू कैन सी थ्रू दैम बट यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली व्हाट इज बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, दोज आर टर्म्ड एज द ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट। फिर आता है ऑपिक ऑब्जेक्ट। ऑपिक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाती, ऑलराइट, जैसे कि वुडन डोर, तो वुडन डोर में से लाइट नहीं जा पाती, राइट, इट गो थ्रू नहीं कर पाती, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। या फिर आप ऐसे पता कर सकते हो किसी भी ऑपिक ऑब्जेक्ट को कि यू कैन नॉट सी थ्रू दैट ऑब्जेक्ट, आप वुडन डोर में से देखने की कोशिश करो कि पीछे क्या है, वुडन डोर के पीछे क्या है, बट यू आर नॉट एबल टू मेक आउट, राइट। दैट मीन्स यू डू नॉट नो व्हाट इज बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि ट्री ट्रंक, एक पेड़ का जो तना होता है, ट्री ट्रंक, यू कैन नॉट सी थ्रू दैट ट्री ट्रंक, राइट, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा उसके पीछे क्या है, एंड दैट कैन बी टेकन एज द ऑपिक ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। Now let's move on to how to make a paper translucent. I told you how to do that. आप कैसे कर सकते हैं? You can make a paper translucent by greasing it. ठीक है, take some oil, vegetable oil or any oil, alright. और उस पेपर पे आप क्या करो, पूरा अच्छे से spread out करके उस पे लगा दो, ठीक है। You make a layer of that oil on that paper. Now after some time you are able to see the paper. You can see through some little bit of. You can make it a translucent. From the opaque to the translucent, all right, so that would be so cool, right, you can try it for yourself. फिर देखो next we learned about the rectilinear propagation of light. So basically rectilinear propagation of light का मतलब होता है light is traveling straight, all right, so basically if light travels straight that means it is the rectilinear propagation of light, but it is goes in every direction, all right. I told you how we make this photo of a sun. So what we do, we make a circle and we get that these straight lines, हम ये सारी की सारी straight lines बनाते हैं and ये straight lines हर direction में जा रहे होते हैं। So basically जो sunlight होती है that travels straight but in all directions, ठीक है, straight in north, straight in south west, straight in every direction but in all direction, remember that. Also remember the speed of the light. What is that? Speed of the light is 3 into 10 के power 8 meter per second. That is the speed of the light and that is the highest speed a body can ever achieve, right? That is the speed of light. Also remember you can see the light from a straight hollow pipe, but you cannot see the light through a curved hollow pipe, right? Because we all know that rectilinear propagation of light, ठीक है, तो लाइट क्या करेगी, बिल्कुल सीधा ट्रैवल करेगी। तो अगर ये जो पाइप है, ये हॉलो पाइप जो है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो लाइट ट्रैवल उसके अंदर से कर सकती है, यू आर एबल टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल। बट अगर तुमने कर्व जो है पाइप ले लिया तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू सी दैट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, बिकॉज वी ऑल नो सन से लेके अर्थ तक वैक्यूम है और वैक्यूम से भी लाइट आती है, राइट। तो मतलब लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एनीथिंग, राइट। इट कैन ट्रैवल थ्रू इवन अ मीडियम और नॉट विदाउट अ मीडियम, ठीक है। तो उसे कुछ ज़रूरत नहीं होती है, इट कैन गो थ्रू एनीथिंग इंस्टेड नॉट थ्रू द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। देखो स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में उसका हाईएस्ट स्पीड होता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में आते आते हल्की सी इसकी स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज एयर हैज पार्टिकल्स, राइट, दैट्स व्हाई। इसकी जो स्पीड है वो ग्लास और वाटर में और भी कम हो जाती है। तो मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है मीडियम की, स्पीड ऑफ द लाइट कम होती जाती है। एयर में थोड़ी कम होती है, ग्लास में यू कैन से लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा कम हो जाती है, और सॉलिड में और ज़्यादा थोड़ी कम हो जाती है। इस तरीके से जो स्पीड है वो वैरी करती है इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन जो है शो करती है, रिफ्लेक्शन मीन्स फॉलिंग एंड गोज बैक इनटू द सेम मीडियम। तो ये जो फॉलिंग होती है वो शाइनी सरफेसेस से होती है, ठीक है, मतलब इट हैज़ टू बी शाइनी सरफेस। और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है विद लिटिल बिट पाथ चेंज, ठीक है, मतलब वो एक मीडियम से जा रही है, एयर में से जा रही है, अब वो वाटर में एंटर करती है तो वो अपना पाथ हल्का सा चेंज कर लेती है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, अब देखो कुछ टर्म्स जो हमें लाइट के बारे में पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो होता है दैट इज यू कैन से इंडिकेशन। अभी जैसे लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तुम कैसे बताओगे? तुम क्या करोगे? रे बनाओगे, ठीक है। यू मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड यू मेक अ पुट एन एरो, जहाँ पर भी एरो लगाओगे पता चल जाएगा भाई लाइट उस डायरेक्शन में जा रही है। सो लाइट का पाथ बताने के लिए यू ऑलवेज मेक अ रे ऑफ लाइट, यू कैन मेक एन एरो ऑफ द लाइट, ठीक है। तो दिस इज लाइक द रे ऑफ लाइट। फिर आप देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बेसिकली बीम इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लाइट रे। बहुत सारी लाइट रेज अगर आप बना दोगे तो इट इज टेकन एज द बीम। बट अगर जो लाइट रेज होगा उसका नंबर बहुत बहुत कम होगा, लेट्स से 2-3 लाइट रेज, तो आप उसको बोलोगे पेंसिल ऑफ मीडियम, पेंसिल ऑफ लाइट, ठीक है। पैरेलल बीम, जब सारी की सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तब हम बोलते हैं दैट इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ऑलराइट, फिर वी डन सम क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं। वी टॉक अबाउट शैडोज। तो बेसिकली शैडो क्या होता है? शैडो इज द रीजन वेयर द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब कभी भी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है एंड कोई भी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाती है, सो क्या होता है, लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है, एंड ड्यू टू दैट उस ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के पीछे एक डार्क एरिया क्रिएट हो जाता है, एक डार्क रीजन क्रिएट हो जाता है, दैट इज टेकन एज द शैडो। ऑलराइट, शैडो इज अ डार्क एरिया वेयर लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय एन opaque object. The opaque object do not allow light to pass through them, therefore they give rise to the formation of shadow. So basically why shadow forms? Because opaque objects are not able to allow the light to go through them, right? फिर देखो क्या उसका फॉर्मेशन का रीजन क्या है? That light travels in a straight line. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट आ जाती है तो वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से शैडो क्रिएट होती है। ऑलराइट, दैट इज द रीजन। फिर इसके एसेंशियल क्या है? नंबर 1, लाइट का सोर्स होना चाहिए, राइट। नंबर 2, कोई भी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, वो भी इन द पाथ ऑफ द लाइट, दैट हैज टू बी डन। नंबर 3, स्क्रीन ऑन विच शैडो इज फॉर्म। सो यू नीड 3 एसेंशियल, 3 कंडीशंस, और यू कैन से 3 नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू क्रिएट अ शैडो। नंबर 1, द सोर्स, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट। नंबर 3, द स्क्रीन, ठीक है। फिर देखो लोकेशन ऑफ अ शैडो। लोकेशन ऑफ अ शैडो, जहां पर भी लाइट सोर्स होता है ना, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बनता है शैडो। तो अगर जैसे लेट्स से द सोर्स ऑफ लाइट इज हियर, ठीक है, मेरे लेफ्ट में सोर्स ऑफ लाइट है, तो शैडो कहाँ बनेगा? मेरे राइट पे बनेगा, टोटली अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट मेरे राइट में होता है तो फिर शैडो कहाँ बनेगा? मेरे लेफ्ट में बन जाएगा, सो टोटली अपोजिट। और अगर सोर्स ऑफ लाइट मेरे सामने है तो फिर मेरा शैडो कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, राइट। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनता है, ठीक है। शैडो फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में पूरा जो यू कैन से पूरा स्पेस, पूरा रीजन है, वो पूरा का पूरा शैडो से हो जाता है, राइट। तो बेसिकली इट इज नॉट एन एरिया, इट इज नॉट लाइक ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, इट इज द वॉल्यूम वी कैन टॉक अबाउट, ठीक है। फिर देखो हाउ शैडो इज फॉर्म। बेसिकली
जो सनलाइट आती है, सन रेज आती हैं, दे आर गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दी पर्सन और द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रक हो जाती हैं, लाइक उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के आगे कोई भी लाइट रे नहीं पहुंच पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक डार्क रीजन क्रिएट हो जाता है, एब्सेंस ऑफ लाइट हो जाती है, दैट इज टर्म्ड एज द शैडो। ठीक है, ऐसे ही शैडो फॉर्म होती है। फिर देखो शैडो स्टिक। शैडो स्टिक एक ऐसी स्टिक होती है जिसे हम जमीन में अगर लगा देते हैं तो वी कैन मेक आउट द टाइम बाय द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो जो स्टिक हमने लगाई थी उसकी हेल्प से हम शैडोज देख पाते हैं, छोटी शैडो, बड़ी शैडो देख पाते हैं, और उसके हिसाब से हम ये गैसिंग पावर करते हैं कि भाई टाइम कितना हुआ है। ऑलराइट, नॉट एग्जैक्ट टाइम बट वी कैन मेक आउट द आवर ऑफ द डे। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से शैडो कास्ट करती है। तो देखो जब ए पोजीशन पे सन होगा तो आप देखो उसका स्टिक का शैडो हमें यहाँ मिलेगा ए पोजीशन में। ठीक है, सो वी कैन मेक आउट दैट दिस इज द मॉर्निंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि शैडो कहाँ बन रहा है? वेस्ट में बन रहा है एंड द सन इज इन द ईस्ट, राइट। तो फिर वी कैन मेक आउट दिस इज द डे टाइम और द मॉर्निंग टाइम। फिर इसी तरीके से जब सन सी पोजीशन पे होगा तो सन इज इन वेस्ट। ठीक है, तो शैडो का बन रहा है? ईस्ट में बन रहा है। वी कैन मेक आउट कि भाई अभी शाम का टाइम है। ठीक है, आप देखो एट द 12 o'clock और यू कैन से एट द नून, shadow is very small in somewhere here, so we can make out when the shadow is very small, then we can make out that this is the noon time of the day. All right, so it helps us. लेकिन ये जो होती हैं मतलब these clocks, these sun clocks actually, not the sun but the shadow sticks clock, basically they are not good clocks because अगर बादल आ गए तो मीन्स क्लाउड्स की वजह से भी तो ऐसा हो सकता है कि हमें पता ही ना चले, शैडो फॉर्म ही ना हो। शैडो फॉर्म नहीं होगी तो हमें टाइम नहीं पता चलेगा, लाइक ऊपर से विंटर्स में एंड समर्स में जो ऑल्टरनेट है, यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ द सन है ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू दैट शैडो अब डिफरेंट डायरेक्शन में बनती है, सो वी कैन नॉट मेक आउट द करेक्ट टाइम फॉर द एंटायर ईयर, राइट। दैट्स व्हाई दीज आर नॉट गुड क्लॉक्स। ऑलराइट, देखो द शेप, साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज़ों पे शैडो का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करता है। नंबर 1, पोजीशन एंड द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पर है, कितना दूर है, कितना पास है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि शैडो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। ठीक है, फिर देखो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच द शैडो फॉल्स, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है कि शैडो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कैसे बनेगी। उसके अलावा सोर्स का साइज। ठीक है, तो मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सन के जितना बड़ा है या बल्ब के जितना बड़ा है या फिर इट इज़ अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि जो शैडो है वो किस तरीके का बनता है। ऑलराइट, अब देखो रीजन्स ऑफ शैडो, देयर आर 2 रीजन्स ऑफ शैडो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पॉइंट सोर्स। तो जब हम किसी पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तब तो हमें जो शैडो है बिल्कुल डार्क मिलता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ शैडोज, सोर्स ऑफ लाइट जो कि बहुत लार्ज है, यू कैन सी द होल वन। ठीक है, बहुत लार्ज है ये सोर्स ऑफ लाइट, तो इस वजह से वी आर गेटिंग 2 रीजन्स ऑफ शैडो। ठीक है, बीच में होता है सब डार्केस्ट पार्ट, दैट इज नोन एज द अम्ब्रा, एंड डार्केस्ट पार्ट के चारों तरफ ब्लर लाइट का होता है, दैट शैडो इज नॉट दैट मच डार्क। ठीक है, तो वो जो एरिया होता है दैट इज नोन एज द पेनम्ब्रा रीजन। ठीक है, और देखो पॉइंट सोर्स अब होता है ना, यू कैन सी ओनली द अम्ब्रा रीजन, सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग जस्ट अम्ब्रा दैट मीन्स द पॉइंट सोर्स इज लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, right? But when you are getting both the types of shadows, that means both the regions of shadows, the umbra and the penumbra, then means the light source is quite big. All right, not a point source. Then we did some questions, right? And now let's talk about again the regions. So basically there are 2 regions, the umbra and the penumbra region. अम्ब्रा जो है वो टोटल डार्कनेस का रीजन है। ठीक है, सो यू कैन सी शार्प शैडो हमें मिलती है, शार्प शैडो एंड डार्क रीजन, दैट इज द अम्ब्रा रीजन। बट जब हम पेनम्ब्रा की बात करते हैं तो पेनम्ब्रा में देखो यू कैन सी द आउटर पार्ट इज लाइक फजी पार्ट, राइट? तो यू कैन गेट लिटिल बिट ऑफ ब्लरनेस इनसाइड दैट। और ये बात तो मैं ध्यान में रखनी है, पेनम्ब्रा इज द ऑलवेज द आउटर रीजन। पेनम्ब्रा क्या होता है, हमेशा बाहर का रीजन होता है, वो अंदर का रीजन नहीं होता, अंदर का हमेशा अम्ब्रा होता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है कि अम्ब्रा नहीं हो। ठीक है, किसी किसी ऑब्जेक्ट का अम्ब्रा नहीं होता, बट इट डजंट मीन कि पेनम्ब्रा अब पूरा का पूरा पार्ट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट मे बी फेंट वन। ऑलराइट, तो देखो
जब हम पॉइंट साइज सोर्स की बात करते हैं, देखो व्हाट वी डिड, ये कैंडल है, ठीक है, तो अब ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है। पॉइंट साइज बनाने के लिए क्या किया, इसके सामने एक वुडन बोर्ड रख दिया और बहुत ही छोटा सा यहाँ पे पॉइंट कर दिया जिसमें से थोड़ी सी लाइट जा रही है, दैट मीन्स इट बिहेव्स एज अ पॉइंट सोर्स। एंड जो हमें शैडो मिलेगी दैट वुड बी द डार्केस्ट, द यू कैन से द शार्प शैडो, एंड दैट विल बी द अम्ब्रा रीजन ओनली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर सोर्स ऑफ लाइट एक्सटेंडेड हुआ तो उसके केस में हमें दो टाइप्स में हमें देखना होगा, ठीक है। कैसे, नंबर वन, जब साइज ऑफ सोर्स इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है साइज किसका, सोर्स ऑफ लाइट का, तो क्या होता है, तो देखो यू आर गेटिंग एन अम्ब्रा रीजन इनसाइड एंड आउटसाइड, द वाइट वन इज शोइंग यू द पेनम्ब्रा रीजन। और जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे ना तो ये जो अम्ब्रा रीजन है ये भी बड़ा होगा और पेनम्ब्रा रीजन है वो भी बड़ा होगा। सो दैट मीन तुम जितना दूर जा रहे हो ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑपेक ऑब्जेक्ट से, सो शैडो इज गेटिंग बिगर, राइट, द अम्ब्रा इज बिगर, द पेनम्ब्रा इज बिगर, बोथ आर द बिगर वन, ठीक है। फिर देखो जब आप सोर्स का जो साइज है दैट इज बिग विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो देखो कितना छोटा अम्ब्रा मिला है एंड अ बिग पेनम्ब्रा, है ना। और वहीं पर अगर हम दूर जाएंगे सो वी गेट मोर स्मॉलर अम्ब्रा बट अ बिगर पेनम्ब्रा। सो जितना जितना तुम दूर जाते जाओगे छोटा छोटा अम्ब्रा होता जाएगा एंड बड़ा पेनम्ब्रा बनता जाएगा, मीन्स अ फेजी शैडो इज गोइंग टू बी देयर, राइट। फिर देखो फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटेंडेड, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा वाइडर होता है लाइट सोर्स उतना ही फजी शैडो होता है। तो कोई जैसे तुम अभी अपने रूम में खड़े हो, राइट, तुम अभी रूम की लाइट्स ऑन करके देखो, तुम्हारा जो शैडो मिलेगा दैट विल बी टोटल फजी, मतलब अम्ब्रा रीजन नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो सिर्फ पेनम्ब्रा रीजन एग्जिस्ट करेगा। मेक श्योर, ट्राई इट आउट, ठीक है, खुद से ट्राई करना, यू विल बी गेटिंग दैट। अब देखो यही रीजन है, पता है कि बर्ड्स, एरोप्लेन्स, इन सब का शैडो हमें धरती पे नहीं दिखता, यही रीजन है। द रीजन इज कि भाई क्योंकि जो सोर्स है दैट इज वेरी बिग एंड द ऑब्जेक्ट इज टोटली स्मॉल, ड्यू टू दैट उसका जो अम्ब्रा रीजन है, जो उसका अम्ब्रा रीजन है वो फिनिश हो जाता है। वो देखो दिस बर्ड इज वेरी स्मॉल, सो सन से आती हुई लाइट रेस की वजह से देखो अम्ब्रा तो यहीं खत्म हो गया, बाकी का जो पेनम्ब्रा रीजन है वो इतना फजी हो जाता है, इतना लाइट हो जाता है कि तुम मेकआउट ही नहीं कर सकते, बहुत हमको पता ही नहीं चलता, इतना ज़्यादा कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द शैडो ऑफ अ बर्ड और एन एरोप्लेन, ऑलराइट। अब देखते हैं हम बात किसकी करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर लाइट आती है, किसी सरफेस से स्ट्राइक होती है एंड इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, एयर से आ रही थी, ठीक है, किसी सरफेस से टकराती है एंड इट गोज बैक इनटू द सेम एयर, that means this phenomena is known as the reflection of light, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। सो जनरल टर्म्स आई टोल्ड यू, मिरर बताया था ना मैंने तुम्हें, तो मिरर जो होता है एक्चुअली दैट इज द थिंग विच इज हाईली पॉलिश्ड। सो मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस एंड उससे क्या होता है एक्चुअली रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है। यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, जैसे हम क्या करते हैं मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, राइट, तो उसके अंदर जो हमारी इमेज दिख रही होती है वो किसकी वजह से दिख रही होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही होती है, ठीक है। सो मिरर इज दी अ स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है, द लाइट रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर, जो कि मिरर के ऊपर फॉल करती है, दैट इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे, उसके बाद देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है द पॉइंट वेयर द लाइट रे इज स्ट्राइकिंग द मिरर, ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट रे मिरर को स्ट्राइक कर रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है, वो मिरर पे ही होता है। फिर देखो द लाइट रे विच गोज बैक इनटू द सेम एयर is actually the light ray known as reflected one। तो बेसिकली लाइट रे यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो ऐसी रे होती है जो मिरर को स्ट्राइक करके वापस एयर में जा रही होती है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर लाइट इज कमिंग, स्ट्राइकिंग द मिरर एंड गोज बैक इनटू द air, so this is known as the reflected ray। So the ray which is falling on the mirror, incident ray।
the mirror which goes back away from the mirror, that is the, you can say, reflected ray. ठीक है. Alright, next talk about the normal. Normal क्या होता है? The line, imaginary line we made and it makes a 90 degree with the mirror. ठीक है, तो वो मिरर से 90 डिग्री एंगल बनाती है. ठीक है, अब यहाँ पे आप मेकआउट कर सकते हैं एंगल्स को. कैसे एंगल्स करेंगे? क्योंकि हम जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करेंगे वो हम नॉर्मल से मेजर करेंगे. तो देखो, ये जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे है जो कि मिरर पे फॉल करती है, वो क्या करती है? वो इस नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और लाइट रे जो कि चली जाती है, मिरर से दूर चली जाती है, वो इसी नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. उसके अलावा मैं तुम्हें बताती हूँ ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो देखो, यही लाइट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड यही लाइट रे जो कि क्या करती है, मिरर से एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज द ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मिरर के साथ बनाए गए एंगल्स वुड बी द ग्लैंस एंगल एंड नॉर्मल के साथ बनाए गए एंगल वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम. उसके अलावा देखो, मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी अ 90 डिग्री. ठीक है, तो इन दोनों का सम वुड बी द 90 डिग्री. ऑलराइट. उसके बाद देखो, वी टॉक्ड अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रेज जो लॉज को फॉलो करती हैं, दोज आर टर्म्ड एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नंबर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज. हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो देखो, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. ऑलराइट, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या समझना है, दैट एंगल आई इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द एंगल आर, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा. एंड I told you the next thing also कि जो next law है वो क्या है, this incident ray, this reflected ray and this normal, these three things are always in the same plane. That means अगर ये पूरा का पूरा plane है, this board is the plane, तो हमेशा क्या होगा, लाइट रे इसी प्लेन में आएगी, स्ट्राइक करने के बाद इसी प्लेन में चले जाएगी. इट विल नॉट बी लाइक दिस कि लाइट रे ऐसे आ रही है एंड इट गोज टूवर्ड्स यू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. इट विल नॉट गो आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड लॉ. इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर ऐसा होता है, बिकॉज डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत बराबर होंगे. ठीक है, इक्वल होंगे. तो क्या होगा, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बोथ गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर. ठीक है. Now see, we talked about the characteristics of the plane mirror कि जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहली चीज हमने देखी थी कि भाई वर्चुअल होता है. वर्चुअल होता है मीन्स इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन. जब तुम मिरर के सामने से हट जाओगे तो तुम्हारा जो इमेज है वो भी हट जाएगा. राइट, तो दैट इज द वर्चुअल वन. यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट टेक इट ऑन अ स्क्रीन, ऐसा. ठीक है. सेकेंड थिंग देखो, इरेक्ट होती है. इरेक्ट होने का मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग राइट, तुम अगर सीधे खड़े हो, ठीक है, तुम्हारा सिर ऊपर, तुम्हारा पाम नीचे, ऑलराइट, तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी उसमें भी उसका सिर ऊपर और उसका पाम नीचे होगा. ठीक है. थर्ड थिंग, यू कैन सी द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो भाई तुम्हारा जितना साइज है तुम्हारी इमेज का भी उतना ही साइज होगा, ना बड़ा ना छोटा. ठीक है, सेम साइज. फिर देखो, तुम जितने दूर खड़े हो मिरर से, तुम्हारी इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे खड़ी होती है, सेम डिस्टेंस. ठीक है, तो तुम जितना दूर खड़े हो मिरर से तो तुम्हारी इमेज भी उतना ही दूर होती है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं किसकी, लेटरली इन्वर्टेड की. लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन वो होता है लेटरली इन्वर्टेड. एज यू कैन सी, देखो इस पर्सन ने क्या किया, दिस इज द पर्सन, दिस इज द इमेज, सेम टू सेम लग रहा है ना, बिल्कुल. ठीक है, तो ये जो पर्सन है, ऑलराइट, ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, अपना लेफ्ट हैंड आगे कर रहा है. ठीक है, लेफ्ट हैंड आगे कर रहा है, बट इमेज में देखो, इमेज में ऐसे लग रहा है जैसे उसकी इमेज राइट हैंड आगे कर रही है ना. तो देखो ये जो कंफ्यूजन हुआ, तुम अगर अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड अगर उठाओगे तो तुम्हारी इमेज अपना राइट हैंड उठाती है, सोचो. तो मतलब ये जो कंफ्यूजन है ना लेफ्ट राइट वाला, दिस इज नोन एज द लेटरली इन्वर्जन. ठीक है.
तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उसके। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा इज द सिंपलेस्ट कैमरा विदाउट अ लेंस, ठीक है। और व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि भाई कैमरे का मीनिंग क्या होता है, कैमरा एक ग्रीक वर्ड है जैसे हम लिखते थे KAMARA, दैट इज कमारा, राइट। तो लेकिन अभी हम क्या स्पेलिंग यूज करते हैं, CAMERA, राइट। तो देखो यहाँ पर जो ये वर्ड है कैमरा, इस कैमरे का वर्ड क्या था, उसका मतलब क्या था, वो है वॉल्टेड चैम्बर, एंड दैट मीन्स दिस इज अ चैम्बर, दिस इज अ बॉक्स, राइट। फिर देखो कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, यू नीड अ बॉक्स, तुम्हें एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर से बिल्कुल भी लाइट नहीं जा सकती, मीन्स अ टोटल लाइट प्रूफ बॉक्स, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो टोटल लाइट प्रूफ बॉक्स होगा, ऑलराइट, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब आप देख सकते हो एक तरफ तो यू कैन मेक इट लाइक दिस इज दी ट्रांसलूशन शीट, ठीक है। तो यू कैन बटर पेपर और समथिंग जिसके ऊपर हमारा इमेज बनता है, एंड दूसरे तरफ यू मेक अ पिन होल कैमरा, दैट मीन पिन होल, दैट मीन्स इट शुड बी मेड बाय अ पिन एंड अ वेरी वेरी स्मॉल होल यू कैन मेक, ठीक है, तभी आपको अच्छा इमेज मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल क्या है, किसकी वजह से ये इमेज बन रही है, वो इमेज बन रही है एक्चुअली थ्रू दिस पिन, ठीक है। इस पिन की वजह से बन रही है, जो पिन होल है इसकी वजह से बन रही है, एंड the concept it is using is the rectilinear propagation of light, that means light are always going straight, ठीक है, वो हमेशा straight जा रही हैं, that is the thing we need to know. Image formation by the pinhole camera, देखो image कैसे बनती है, जो ऑब्जेक्ट का ऊपर का पार्ट है वहां से लाइट रे जाती है, it goes like this straight, it goes like this and it is formed here, right. जो उसके ट्री के रूट्स हैं, you can see the light goes like this and it forms image here. So basically this is the image, the inverted, small and a blur image, ठीक है। तो ये जो तीन characteristics है you can make them, ठीक है। characteristics देखो, it is a real image, real क्यों है, because it is forming on a screen, है ना, तो ये क्या है, एक real image है। फिर देखो इसका जो साइज है वो एक्चुअल ट्री के साइज से तो बहुत छोटा है, तो वी कैन मेक कि भाई जो इमेज बनती है वो स्मॉलर साइज की बनती है, ठीक है। इमेज इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, कैसे होती है, उल्टी होती है, मीन्स टॉप पार्ट ऑफ द ट्री इज सीइंग एट द बॉटम, और जो उसका रूट है जो नीचे होना चाहिए था वो तो ऊपर दिख रहा है, तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो आपको 3 थिंग्स रिमेंबर करनी है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज, ठीक है। फिर देखो पेरिस्कोप, आई टोल्ड यू पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आप किसी दीवार के ऊपर से देख सकते हो, जहाँ पे आप नॉर्मली नहीं देख सकते, बट इफ यू वांट टू सी तो फिर यू कैन यूज दैट पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहाँ यूज होता है तुमको पता है, वो होता है लाइक यू कैन से इन वॉर्स, ठीक है। तो क्या होता है, बंकर के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो छुपे होते हैं, एंड इफ दे वांट टू मेक आउट कि भाई उनका एनिमी कहाँ है, तो वो क्या करते थे, पेरिस्कोप यूज करते थे। तो देखो खुद वो छुपे रह सकते थे, दीवार के पीछे छुपे रह सकते थे, एंड दे कैन मेक आउट वेयर आर देयर एनिमीज एंड दे कैन विन द वॉर, राइट। तो ये इस तरीके से भी यूज हो सकता था पेरिस्कोप। सो बेसिकली पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से यू कैन मेक आउट थिंग्स दैट आर नॉट इन योर यू कैन से विजन के, जो तुम्हारे डिस्टेंस में है, ठीक है, इफ यू कैन मेक आउट दोज थिंग, ठीक है। तो ये जो है ये जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज एबल टू मेक यू सी बियॉन्ड दैट वॉल, ठीक है। एंड द थिंग इज कि ये प्लेन मिरर यूज करता है, ठीक है। ये देखो 2 प्लेन मिरर्स आर यूज्ड हियर, वन इज हियर एंड द सेकंड वन इज हियर, तो 2 प्लेन मिरर्स यूज होते हैं, एंड लाइट रेज इस तरीके से आती हैं मिरर से टकरा के, सेकेंड मिरर पे जाती हैं एंड इट गोज बैक इनटू द आईज, तो यू कैन सी द इमेज ऑफ दैट ट्री इन दिस मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 मिरर्स यूज करता है पेरिस्कोप, प्लेन मिरर्स, एंड ऑल्सो उसके बाद क्या होता है, जब वो इस तरीके से प्लेन मिरर यूज करता है एट एन 45 डिग्री एंगल, सो यू कैन सी द इमेज ऑफ द थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर डायरेक्शन ऑफ विजन, ठीक है, यू कैन सी द थिंग्स, ऑलराइट। सो दिस इज एन इट, ठीक है। इतना कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी किया है, एंड दैट इज इट। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, सो बी रेडी फॉर दैट, रिवाइज द चैप्टर अगेन एंड अगेन, एंड इट वुड बी सो कूल इफ यू डू दैट, so you can remember the facts more clearly, all right. So thank you so much, thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.